Hello everyone and welcome to PenMedu, and I welcome you back to the vocabulary session here. As I've already told you why this session is important for you, so kindly subscribe to the channel so that you don't miss any of the sessions. Also, if you guys are preparing for any civil service exams, you guys know कि कैसे आप sentence का meaning understand. Like a complete article you can discuss, you get to know here. We discuss it completely with you, word by word. Also, I go play by play. Like word by word, that means I explain you every bit, whether it's a difficult word or it's a simple word. I give you the context for every bit. So guys, let's get on with it. For today, the article heads as taking on the center on states rejecting farm laws. Now, as we all know, this is in news, new farm law has been again rejected by the states. So their center taking on the center. So taking on the center. Now, center has come into being when states are rejecting the farm laws. States aggrieved by central farm laws are adopting both legislative and legal measures. What is happening is that states are aggrieved by central farm laws. The laws that are imposed by the center, states are continuously rejecting or abrogating them. They're not willing to accept it or follow it. Okay. So aggrieved here is used as a verb, which means annoyed और डिस्टर्ब्ड, कहते हैं ना परेशान होना, तो किसी चीज से पीड़ित होना. So यहाँ पर if we talk about, so the states हैं, they are all aggrieved or they're disturbed by the laws or the state farm laws that have been enacted by the center. Okay, and they're adopting both of the measures, whether it's legislative measures, legal measures, to overcome this, to just nullify these laws. Punjab's effort to enact state amendments. Enact is a verb which means to implement or to bring into practice. Bring into practice. Okay, that is लागू करना. Okay, या किसी चीज पर, किसी लॉ पर अमल करना, that is enact. So Punjab's efforts to enact state amendments to override the effects of centre's new agriculture law epitomize the difficulties in managing the conflict between liberalizing the farm sector and protecting the small and marginal farmer from the agonies of the transition. Now see what is happening. सेंटर ने कुछ लॉज, फार्म लॉज जो हैं उनको इम्प्लीमेंट किया. पंजाब का एग्जाम्पल यहाँ दिया जा रहा है. पंजाब ने क्या किया, उन्होंने एक नया क्या किया, दे हैव स्टेट अमेंडमेंट्स ले आए हैं. उन्होंने नए अमेंडमेंट्स ले आए हैं वो अपने स्टेट में. क्यों? क्योंकि वो जो सेंटर का जो रूल आया है, लॉ है, उसको ओवरराइड करना चाहते हैं, उसको एनल करना चाहते हैं, उसको नलिफाई, उसको लाइक वो एब्रोगेट कर रहे हैं, उसको रिजेक्ट कर रहे हैं, किसी चीज को भंग करना. ओके, या उस चीज को तोड़ना. ओके, तो व्हाट हैज स्टेट डन, स्टेट हैज कम अप विद न्यू अमेंडमेंट्स, दैट इज पंजाब. जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है पंजाब का. देयर आर अदर स्टेट्स आल्सो doing such things wherein they are against a center, they are not accepting or willing to accept the farm laws that are being enacted by the center. So what Punjab did, Punjab came up with state amendments, and these state amendments would override, would nullify the center's farm law. Okay, so जो center का जो law है या जो new agriculture law है, उसको वो override कर देगा, उसको cancel कर देगा. And this epitomized the difficulties. Epitomize is a verb used here. Epitomize means to summarize. कहते हैं ना, कोई चीज को संक्षेप में बताना, तो सारांश करना, किसी चीज का सारांश करना. तो ये जो पॉइंट है, जो पंजाब का ये जो स्टेप आया है, राइटर सेड कि ये समराइज करता है, ये इस चीज का पूरा एक समरी हमें देता है. आप कह सकते हो
कि जो डिफ़िकल्टीज़ थी या जो प्रॉब्लम्स हैं, जो जंग है, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, आपसी कॉन्फ्लिक्ट है फार्म सेक्टर को लिबरलाइज करने में और प्रोटेक्ट करने में, जो छोटे छोटे फार्मर्स हैं उनको प्रोटेक्ट, ये और बढ़ती जाएगी और इससे जो है उनका दुख दर्द और बढ़ता जाएगा। सो दे से मार्जिनल फार्मर्स को एगनी से बचाना है। Agony matlab, it's a noun. I'm going to wipe off the screen and explain you the meaning. Wait. Okay. So agonies. So agony is noun. All right. It means pain. Okay. Some sort of pain that a person felt or difficulty that a person. So कहते हैं कि हम जहाँ पर प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे हैं स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को उनकी तकलीफों से, दैट इज तकलीफ जो उनको ट्रांजिशन से होती है। तो हम अगर इस कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं कि हम फार्म सेक्टर को लिबरलाइज भी करना चाहते हैं और साथ साथ हम उनकी प्रॉब्लम्स को भी मिटिगेट करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, पर इससे इस कॉन्फ्लिक्ट में क्या है, और डिफ़िकल्टीज बढ़ती जा रही हैं। वो समराइज कर रहे हैं कि डिफ़िकल्टीज को देखिए कैसे क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये प्रॉब्लम्स आती हैं, सेंटर एक पॉइंट के साथ आया, स्टेट उसको रिजेक्ट कर रहा है। The issue also flags the consequences of not having a wide and informed debate before introducing far-reaching changes. Punjab has been the hub of the opposition to the centre's legislative exercise to change the basics of trade and commerce in agriculture. तो वो कहते हैं in this particular paragraph कि ये जो issue है, जो परिणाम रहे हैं इन चीज़ों के, वो हमेशा से वाइड और इन्फॉर्म डिबेट में उन चीज़ को इंट्रोड्यूस किया गया है, इस पर चर्चा भी हुई है, सब कुछ हुआ है चेंजेस के बारे में। बट पंजाब एक स्टेट ऐसा स्टेट रहा है जो कि हमेशा टॉप रहा है सेंटर को अपोज करने में, वो कभी पीछे नहीं रहे। पंजाब ने हमेशा सेंटर को अपोज करने के लिए वो हमेशा आगे रहा है। ओके, जब भी बात आई है कोई भी चेंज की, जो कि ट्रेड या फिर कॉमर्स में, एग्रीकल्चर के स्पेसिफिकली, अगर एग्रीकल्चर के ट्रेड या कॉमर्स में कोई चेंजेस आए हैं, वो चेंजेस किसने लाए, सेंटर ने लाए हैं। तो स्टेट जो है दैट इज पंजाब, वो डेफिनेटली ऑपोजिशन में आता है। तो द राइटर सेज दैट पंजाब हैज बीन द हब ऑफ ऑपोजिशन, वो एक सेंटर है ऑपोजिशन का, वो हमेशा अपोज करते हैं स्टेट के किसी भी निर्णय को। Next, the writer says the Akali Dal, you are well aware of it, so famous section or the party. The main opposition in the state eventually withdrew its cabinet minister and later walked out of the NDA government at the center. अब भाई आप देखिए सेंटर में जो NDA गवर्नमेंट, उससे पहले तो उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया और कैबिनेट मिनिस्टर वहां से भी। Punjab argues that the central acts would cause grave detriment and prejudice. अब देखिए पंजाब ने आर्ग्यू किया है कि जो ये सेंटर के जो एक्ट्स हैं, जो डिसीजंस आ रहे हैं, वो क्या मुसीबत खड़ी कर देंगे। अब देखिए ग्रेव, डेट्रिमेंट एंड प्रेजुडिस, हमारे पास 3 वर्ड्स हैं, तीनों को अंडरस्टैंड करें। ग्रेव जो है एडजेक्टिव की तरह आया है, किस किस को क्वालिफाई कर रहा है, इस नाउन को, डेटरमिनेंट को, और इस नाउन को, प्रेजुडिस को। ठीक है, ग्रेव का मतलब होता है सीरियस, इंटेंस, ओके, सीरियस, गंभीर, ओके। डेट्रिमेंट नाउन है, ओके, जिसे हम कहते हैं हानि, डैमेज और अ कॉज ऑफ डैमेज, ओके। प्रेजुडिस आप कह सकते हो जो पक्षपात होता है, ठीक है, जो पक्षपात होता है भाई, प्रीकंसीव्ड ओपिनियन के बेसिस पर अगर कोई निर्णय लिया जा रहा है तो वो ऑब्वियसली क्या होगा, वो पक्षपात होगा, वो एक कहते ना चीटिंग,
क्योंकि वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा होगा जो कि कॉन्टेक्स्ट जो कि जो मीनिंग या जो यूसेज है उसको वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा होगा। जो फॉर एग्जाम्पल सिचुएशन कुछ और थी पहले और आपने उस पर बेस्ड कुछ डिसीजन ले लिया, अब सिचुएशन कुछ और है तो एक्शन लेने से पहले आप उसको रिवाइज तो करोगे ना अपने एक्शन को, राइट। सो अगर आप बिना रिवाइज किए अपने एक्शन को वही सेम डिसीजन लेते हो, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं पक्षपात कर रहे हैं, राइट। तो प्री कंसीव नोशन पर बेस्ड अगर कोई निर्णय होता है तो पंजाब ने ये कहा है कि अगर ये जो सेंट्रल के एक्ट्स हैं ओके ये जरूर से कुछ गंभीर एक हानि लेकर आएंगे किसको, एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज के लिए। एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज के लिए बहुत जबरदस्त हानि लेके आएंगे वो कह रहे हैं, ओके। तो वो एक प्रॉब्लम होगी, वो डिफिकल्टी होगी फॉर दी कम्युनिटी, फॉर द फार्मर्स। एग्रीकल्चर कम्युनिटी का मतलब क्या है, फार्मर्स हो गए, ओके जो जमीन जिस पर दे कम अप जमींदार है, तो वो जो कम्युनिटी है उनको बहुत इम्पैक्ट होगा। The bill cites an agricultural census of 2015-16 to argue that 86.2% of farmers own less than 5 acres, a majority of them less than 2 acres. So जो वो एक फैक्ट जाहिर कर रहे हैं कि बिल्स जो हैं एग्रीकल्चर सेंसस को दिखाते हैं 2015-16 का कि जो 86.2% फार्मर्स हैं उनका तो 5 एकड़ से कम जमीन है और काफियों के पास तो 2 एकड़ से भी कम, एंड दैट विद लिमिटेड और नो एक्सेस टू मल्टीपल मार्केट्स। भाई इतना प्रोड्यूस भी अगर है उनके पास एक्सेस नहीं है मार्केट्स का तो क्या है, दे वुड बी हैंडीकैप्ड व्हाइल नेगोशिएटिंग फेयर प्राइस कॉन्ट्रैक्ट्स विद प्राइवेट प्लेयर्स। अगर आप डायरेक्ट जो मिडलमैन को गायब करके अगर आप डायरेक्ट कितना फार्मर से जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उन तक पहुंचाना चाहते हैं तो वो कहाँ तक वो नेगोशिएट करेंगे जब उनको कोई इस चीज की कोई नॉलेज ही नहीं है। अब देखिएगा नेगोशिएटिंग ये पॉइंट, तो वो कैसे नेगोशिएट करेंगे, making efforts to buy farm produce at less than the MSP or harassing farmers in a bid to persuade them to enter into such contracts have been sought to be made punishable offences with a jail term for at least 3 years. अब क्या किया गया है कि कोई अगर उन फार्मर्स से ज़बरदस्ती करता है, उनसे उनका प्रोड्यूस MSP से नीचे के अमाउंट पे लेता है या फिर उनको ज़बरदस्ती परस्यूएड करते हैं या इवोक करते हैं, उत्तेजित करते हैं कि वो कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर ले उनके साथ, तो ये सारे के सारे पनिशेबल ऑफेंसेस हैं और इसकी जो पनिशमेंट है दैट इज फॉर 3 years, जेल टर्म फॉर 3 years. This is at least for 3 years. It may extend, it depends on the situation. The bills also seek to overturn the centre's move to remove the fee on trade and transactions that take place outside markets functioning under APMCs. Functioning under APMCs. Now just wonder कि उन्होंने कहा कि ये जो बिल है ये किस चीज़ को ओवरटर्न, किस चीज़ को ओवररूल करने की बात कर रहे हैं, सेंटर की जो मूव है कि वो रिमूव करना चाहते हैं, जो ट्रेड और ट्रांजैक्शन पर जो फीस लगी है उसको वो हटाना चाहते हैं, एंड दैट टेक प्लेस आउटसाइड ओके, जो भी ट्रांजैक्शंस APMC के अंडर हो रही हैं और जो मार्केट से बाहर हो रही हैं उन सब पर ये चीज़ एप्लीकेबल है। तो जो स्टेट की जो अमेंडमेंट आई है वो इस बिल के जो स्टेटमेंट है इसको ओवररूल करने के लिए उन्होंने ये अमेंडमेंट निकाला है, क्योंकि वो सेंटर की जो बात है या जो सेंटर का जो एक्ट है whatever the decision is उसको वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। alright, moving ahead, the writer further says a key issue raised by Punjab's proposed amendments is whether they are legally valid and where they stand in the teeth of the centre's legislation. They say this is a question, this is a key issue raised by Punjab. ये एक बहुत बड़ा question पंजाब ने propose किया है
पंजाब की जो स्टेप है या जो अमेंडमेंट है उसने प्रपोज किया है, इज दिस लीगली वैलिड, क्या ये जो है ये कानूनी तरीके से ये सही है ऐसा करना या नहीं। दूसरी चीज कि सेंटर के जो लेजिस्लेशन, सेंटर ने जो डिसीजन लिया है या सेंटर ने जो पॉइंट रखा है उससे पंजाब कहाँ, वेयर डज इट स्टैंड इन द टीथ। स्टैंड इन द टीथ इज अ फ्रेज विच मीन्स इन अ डिफिकल्टी, मुसीबत में। तो वो कहते हैं कि दो क्वेश्चंस खड़े होते हैं कि कहाँ पंजाब, पहली चीज तो सेंटर के इस डिसीजन की वजह से मुसीबत में है, कहाँ ऐसा कहाँ पर मेंशन है कि सेंटर के इस डिसीजन से, या ऐसा कैसे उनको फील हो रहा है कि सेंटर के इस डिसीजन से उनको प्रॉब्लम होगी। दूसरी चीज वो ये भी कह रहे हैं कि ये लीगली किस हद तक वैलिड है, वायबल है लीगली। States can indeed amend central laws enacted under the concurrent list. So they can amend, state amend कर सकते हैं central laws बिल्कुल जो concurrent list में mention है, subject to the condition that provisions repugnant to the parliamentary acts. Repugnant is an adjective which means unacceptable. Unacceptable. So that provisions repugnant to the parliamentary acts will have to get the president's assent. Assent, that means approval. Assent means approval. It's a noun, okay? ये noun है, कहते हैं ना अनुमति। तो भाई प्रेसिडेंट की अनुमति चाहिए अगर आप किसी सेंटर के डिसीजन को नकारना चाहते हो या आप अपनी स्टेट में कोई लॉ अमेंड करना चाहते हो, ठीक है, तो आपको प्रेसिडेंट की परमिशन चाहिए, विदाउट विच दे डू नॉट कम इनटू फोर्स। उसके बिना वो इफेक्टिव नहीं है, आप उनको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। The Punjab bills note that agriculture is under the legislative domain on the states, as the subject falls under the state list in the 7th schedule. अब पंजाब का बिल कहता है कि वो लेजिस्लेटिव डोमेन में आते हैं स्टेट के, क्योंकि जो उनका स्टेट है वो 7th schedule के अंदर आता है स्टेट लिस्ट में। The center has enacted its farm sector bills by invoking entry 33B. By invoking, by, this is a verb, मतलब किसी चीज को आवाहन करना, ओके, टू कॉल फॉर। तो उन्होंने क्या किया है, किस चीज के लिए उन्होंने आवाज दी है, एंट्री 33B इन द कॉन्करेंट लिस्ट विच कंसर्न्स ट्रेड एंड कॉमर्स इन एंड प्रोडक्शन एंड सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड स्टफ्स। By stretching the entry's meaning to include agriculture, Parliament has managed to pass laws in the domain of the state. तो फूड स्टफ की बात करें, एग्रीकल्चर, तो उसको ले जाने के लिए उन्होंने पार्लियामेंट ने पर्टिकुलर स्टेट्स को अलग अलग डोमेन्स में जो है राइट दिया हुआ है टू पास द लॉज। तो यहाँ पर पंजाब ने 33B के तहत ये अमेंडमेंट लागू करने की कोशिश की है, पर अभी ये देखना होगा कि किस हद तक वैलिड है या नहीं, अभी ये चीज़ भी पेंडिंग है। मूविंग अहेड, द राइटर सेज, इन दीज सर्कमस्टांसेस states aggrieved by the farm sector laws will either have to go the Punjab way or adopt the bills that would require presidential assent, as Rajasthan has decided to do, or challenge the validity of central laws in the Supreme Court, as Chhattisgarh is said to be considering. तो अब देखो क्या, पंजाब की तरह से आप बिल को अडॉप्ट कर लीजिए, ठीक है, प्रेसिडेंशियल की असेंट चाहिए भी उसके लिए, आप बिल को अडॉप्ट कर लीजिए तो अमेंडमेंट के साथ, जैसे कि राजस्थान ने भी सेम डिसीजन दिया। राजस्थान एंड पंजाब आर ऑन द सेम पेज, मतलब वो उनका निर्णय सेम है, वो एक सी बात कह रहे हैं। जबकि छत्तीसगढ़ जो है सुप्रीम कोर्ट जा रहा है सेंटर के लॉज को अगेंस्ट जाने के लिए, उनके अगेंस्ट खड़ा है। Whatever the outcome, that is whatever the result, clear from the groundswell of opposition across the country is that a cavalier and centralized approach, अब cavalier किसके लिए आया है, approach के लिए। Cavalier is an adjective. It is an adjective which means unconcerned, कहते ना बेतुका या केयरलेस, वो
approach अगर रहेगी issues से that affect millions of farmers ill serves a diverse country. तो अगर कहीं भी भूल चूक हुई, अगर अप्रोच में प्रॉब्लम है तो भाई फार्मर्स बहुत सफ़र करेंगे, और अगर फार्मर्स सफ़र करेंगे तो फिर पूरा नेशन सफ़र करता है, एंड दैट इज ऑब्वियस, पूरा नेशन ही सफ़र करता है देन, राइट. सो दिस इज़ व्हाट द राइटर विशेस टू से, एंड दिस इज़ व्हाट द स्टेट, अगर मैं लॉज की बात करूँ, सेंट्रल लॉज एंड स्टेट लॉज, तो ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है सेंटर और स्टेट में आपस में. और ये आज की बात नहीं है, दिस हैज़ बिन इन प्रैक्टिस फॉर लॉट मेनी ईयर्स, and there are difference of opinion, then there's not much problem unless things are settled peacefully. All right, so this was the entire article for today, learners, and I hope you guys have understood it, and you have gone through the words that I had discussed. The list of the words that I have discussed is there on the site. The link for the same is there in the description. Kindly visit the page and start practicing the words that we have shared with you guys today. I shall see you soon in the next session, learners. Till then, keep learning and growing, as I always say. And do not forget to like the video and share it with your friends. Also subscribe to the channel for regular sessions with us. Thank you so much.